Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the operations on set. Operations on set means कि हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे किसकी कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव लॉ विद द यूनियन एंड द इंटरसेक्शंस. कॉम्पिटिटिव लॉ एंड द एसोसिएटिव लॉ विद द यूनियन एंड इंटरसेक्शंस. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस. If we have the two sets A and B, then the A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. Okay students, suppose let's prove it like if a set A is equal to 1 2 and set B is equal to 2 3. First of all we will find the A union B. A union B. What is the meaning by union? Combine. What is the meaning by union? Combine. First of all we will write the value of the A, then we put the same sign union and we put the sign of the set B. ठीक है, हम set B की वैल्यूज को लिखेंगे. Union means students combine, therefore we combine the value 1 2 and 3. Now we suppose the right side B union A. Okay, write B union A. First we will write the value of the set B, then we put the sign of the union, again we will write the value of the A. Value of the set B is equal to 2 and 3, value of the set A is equal to 1 and 2. Combine it, we will start from the small value 1 2 3. So we prove it A union B is equal to the B union A. Clear student? Same we will find the value of the A intersection B. Suppose we have the value of the A is equal to 1 2 and set B is equal to 2 and 3. First of all we will find the A intersection B. Value of the A 1 2, intersection value of the B 2 and 3. Now we put common because the words of the intersection mean common. Therefore 2 to मैच हो रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. इस तरह हम लोग B intersection A करते हैं स्टूडेंट्स. First of all we will write the value of the B set, then we put the sign, we will write the value of the A set, then we take also common. Therefore we will prove it A intersection B is equal to B intersection A and A union B is equal to B union A. The law of commutative we have also proved that. Okay, law of commutative of the union and the law of commutative of the intersection. Law of the commutative of union this and law of the intersection of the commutative this. We have also proved it. Next we will discuss about the associative law of the union and intersections. Associative law of the associative law. Okay, associative law. Associative law of the union is A union B union C is equal to A union B union C. लॉ ऑफ एसोसिएटिव. क्लियर? लॉ ऑफ एसोसिएटिव हमें कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. यानी कि सबसे पहले हम लोग दो सेट का अगर हम लोग यूनियन लेते हैं उसके बाद उसको तीसरे सेट के साथ यूनियन करते हैं, तो अगर हम लोग दो सेट का फिर अगेन यूनियन लेते हैं, इसमें हम डिफरेंट सेट का लेंगे बी और सी का, इसमें हम लोग ए और बी का लेंगे. उसको जब हम लोग सी के साथ करेंगे दोनों का आंसर क्या देगा, सेम आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम? एसोसिएटिव लॉ हम लोगों ने प्रूव करना हो तो हम लोग कोई सा भी सेट ले लेते हैं. लाइक हम लोग सपोज इसी को ही ले लेते हैं ए और बी को, फिर हम लोग उसके बाद उसका यूनियन करेंगे, उसके बाद उसका ए के साथ. लाइक तो हमारे पास ए सेट आ जाता है हमारे पास 1 2, बी सेट है हमारे पास 2 3, सी सेट है हमारे पास 4. हमने 1 वैल्यू इंक्लूड कर लिया. सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सेट की वैल्यू यूनियन सी सेट की वैल्यू. बी सेट की वैल्यू क्या है 2 3, सी सेट की वैल्यू 4. व्हेन वी कंबाइन 2 3 4.
अब हम लोग इसका ए के साथ लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू यूनियन बी यूनियन सी का स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे 2 3 4। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2। हम लोग जब इन्हें कंबाइन करें तो हमारे पास क्या जाएगा 1 2 1 2 2 टाइम्स है, हम लोग 1 टाइम लेंगे 3 और 4। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी पड़ेगी ए यूनियन बी और यूनियन सी। यानी कि सपोज हम लोग इसको लेते हैं ए यूनियन बी, हम लोग दोबारा से करते हैं ए यूनियन बी के साथ। ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 2, यूनियन बी की वैल्यू तो हमारे पास 2 3। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। अब इसको हम लोगों ने करना है ए यूनियन बी को यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 3। यूनियन सी की वैल्यू क्या 4, तो हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4। स्टूडेंट्स वी आल्सो प्रूव दैट लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ ऑफ द कमोडिटी। Okay students, class 8, according to this exercise number 1.2, clear 1.2 एक्सरसाइज सेम हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी और ए बी यूनियन सेम आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में उसका इंटरसेक्शन ये भी आप कर लेंगे। वेरिफिकेशन में वो आपसे कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये एसोसिएटिव लॉ मैंने अभी आप लोगों को करवाया, यहाँ तक बेटा आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग कल वेरिफिकेशन करेंगे। वैसे तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।